Yes, welcome students. Last time in lecture number 5 on differential calculus course number 1, we have introduced some this net derivative of some special function as e raised power ax sin bx plus c, e raised power ax cos bx plus c, and we had some applications, and this was the first application that we did. Let us today do this application, solution of this application to find net derivative of, to find how we go to find out nth derivative of, it is e raised to power 3x sin square x cos cube x. So when we find out the nth derivative of this, we will reduce this into a standard form function. I will write y is our, let us take y as e raised to power 3x, this is sin square x cos cube x. I have already told you in previous lecture, when we come across the questions like this, the minimum power of sine is sine square, we connect here sine square cos square and convert it into this conversion of product into some formula we will use. You will see how. I write it y is equal to e raised to power 3x, this I will write sin square x then cos square x into cos x, because we have cos cube here. This is y equal to e raised to power 3x, then I will write this sin x cos x whole square. I will introduce here 4 division by 4, not here 4 will be later on. I will be writing this 2 by 2, okay, because you have twice sin theta cos theta sin 2 theta, so you have converted this product into sum. This is cos x, or in other words this has gone to the single term. It is y equal to e raised to power 3x, this you can write now sine of 2x square by 2 by 4 into cos x. This is further 1 by 4 e raised to power 3x cos x here, e raised to power 3x, then sine square 2x into cos of x, sine square 2x into cos of x. Now we have formula for sine square theta. You know what is your sine square theta? It is 1 minus cos 2 theta by 2. Cos 2 theta is 1 minus twice sine square theta, so it is 1 minus cos 2 theta by 2. So accordingly you will write your y is now 1 by 4 e raised to power 3x, e raised to power 3x, this sine square I will write 1 minus cos 4x by 2 into cos x, because we have here 2x, we give theta 2, it is sine square 2x 1 minus cos 4x by 2. Okay, this will be y is equal to 1 by 8 e raised to power 3x. Now multiply by this cos, it is cos x minus cos 4x into cos x. We are coming closer, we have reduced this term, single term, we need it, we don't disturb it, but this is to be converted, this is the product, I will convert it into sum. You see how. I will write it 1 by 8 e raised to power 3x, this is your cos x minus, right here 2 cos 4x into cos x by 2. I have multiplied by 2 and divided by 2. Why? Because we have the formula twice cos a cos b, which is cos of a plus b plus cos of a minus b. I will use that formula here. Well,
After this you will write it. It is y equal to 1 by 8. E raised power 3x is out. This is your cos x minus 1 by 2 into 2 cos a cos b. It is cos of 4x plus x plus cos of 4x minus x. Which formula I am using? Twice cos a cos b, which is cos of a plus b plus cos of a minus b. I have already given you the 4 formulae in previous lectures. 4 results, conversion of product into sum. You remember that? Out of those 4, one is twice cos a cos b. So you have this now. Y is equal to 1 by 8 e raised to power 3x. This is your cos x minus 1 by 2 cos of 5x, then again minus 1 by 2 cos of 3x. Now you can simplify this, then you can write down the nth derivative directly. This is y is equal to 1 by 8 e raised to power 3x cos x, then minus 1 by 16 e raised to power 3x cos 5x minus 1 by 16 e raised to power 3x cos of 3x. You see, it is now converted into standard form. Which standard form? If you have u is equal to e raised to power ax cos of bx, when you have u is equal to this thing, what is your nth derivative? You remember what is un? Un will be, it is a square plus b square raised power n by 2 e raised power ax cos of bx plus n times tan inverse b by a. This is your nth derivative for this. So accordingly we write the nth derivative here. So proceeding for it is nth derivative. This is the result for nth derivative that we did previously. We are using this. You revise it, you have done it. So it is yn is equal to nth derivative. 1 by 8 is multiple constant. Write the nth derivative for this product first. It is e raised power x cos bx. A is 3, b is 1. Use that formula. A square plus b square, that is 3 square plus 1 square e raised power 3x, then cos of x as it is plus n times tan inverse b by a. What is your b? It is 1 by 3. This is the nth derivative for this part. Then we come to second term. It is minus 1 by 16. It is 3 square plus 5 square, because your b is 5, e raised to power 3x, then it is cos of 5x plus n times tan inverse b by a. It is 5 by 3. This is the nth derivative for this part. Now we have this minus 1 by 16. This is a square means 3 square plus 3 square e raised to power 3x cos of 3x plus n times tan inverse 3 by 3. Now in every term you have e raised power 3x. You can take it out and write the result in some simplified form. I will rub it. Well, this is your yn is 1 by 8 times, simplify this, it is 3 square 9 plus 1, it is 10 times
e raised to power 3x cos of x plus n times tan inverse 1 by 3, then minus 1 by 16, 3 3s are 9, it is 9 plus 25, 34, it is 34, e raised power 3x cos of 5x plus n times tan inverse 5 by 3. Then here you have minus 1 by 16, it is 18, e raised power 3x cos of 3x plus n tan inverse 1. Now you have tan inverse 1, you can write as pi by 4 as you did it previously. Well, you can take now yn is e raised power 3x is out. This you can write 10 by 8, it is 5 by 4 cos of x plus n tan inverse 1 by 3, then minus 17 by 8 e raised power 3x is out, it is cos of 5x plus n times tan inverse 5 by 3, then minus 9 by 8, it is cos of 3x plus n. Now you have the value of tan pi by 4 is 1, you can write tan inverse pi by 4, tan inverse 1 as pi by 4. You can put result in this way, short form. So this is the nth derivative of this part, how we find out nth derivative of this. I have given you some examples for finding out the nth derivative. You can do rest of the questions from your text. So I think this is clear to you. Let me rub it. तो दूसरा अब मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ it is y is equal to e raised power x cos alpha into cos of x sin alpha. ठीक है, यहाँ पे cos alpha जो है ये कांस्टेंट है, sin alpha जो है ये भी कांस्टेंट है. अगर आप यहाँ पे a को लेंगे cos alpha and we shall take b as sin alpha. Now this reduces to y is equal to e raised power ax and cos of bx. याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप या 2 मार्क्स टाइप है, क्योंकि क्वेश्चंस में होते हैं डिफरेंट टाइप, एमसीक्यू होता है या 2 मार्क्स. अगर 2 मार्क्स से ज़्यादा है आपको जाना पड़ेगा प्रीवियस थ्योरम जो मैंने दिखाया फॉर फाइंडिंग आउट nth डेरिवेटिव. यानी कि पहले आप निकालेंगे y1 फिर y2 फिर y3, फिर वो उसको सिमेट्री के हिसाब से आप लिखेंगे yn. मतलब यहाँ से ये आपने किया है, ये आर्टिकल टाइप जाएगा. यहाँ पे जो आपने आर्टिकल किया है प्रीवियस लेक्चर में, जो हमने किया है लेक्चर नंबर शायद 5 में शायद किया है हमने ये आर्टिकल, उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा. अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप है, अगर वेरी शॉर्ट है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. ए को हमने लिया कॉस अल्फा, बी को लिया साइन अल्फा. अगर डायरेक्ट है या कभी ये एमसीक्यू में भी आता है तो आपका वाई एन क्या आएगा यहाँ पे, वाई एन इस हिसाब से इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज पावर n बाई 2 ई रेज टू पावर ए एक्स. वही फार्मूला जो आपने किया, ई रेज पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी एंड ई रेज पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी. प्रीवियस don't jump over this lecture number 6 until you revise, you switch to lecture number 5. लेक्चर नंबर 5 पे ठीक तरह से जाइए, फिर आपको पता चलेगा क्या करना है. लॉन्ग आंसर के लिए ऐसा नहीं करना है, लॉन्ग आंसर के लिए इसको डिराइव करना पड़ेगा. लेकिन अगर शॉर्ट है, एमसीक्यू है,
तो आप डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। ई रेज टू पावर एक्स देन कॉस ऑफ व्हाट बी एक्स प्लस एन टाइम्स tan इनवर्स बी बाई ए। अब हम ए और बी का वापस वैल्यू दे दे हैं, सो इट इज़ वाई एन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा रेज पावर एन बाई टू। इट इज़ ई रेज टू पावर ए इज एक्स कॉस एल्फा एंड कॉस एक्स बी इज साइन एक्स साइन एल्फा। दिस इज प्लस एन tan inverse b by a, b is sin alpha cos alpha, it is tan alpha। जब आप b by a लगाएंगे it is 1, yn is 1 raised power n by 2 is also 1 raised power, it is simply e raised power x cos alpha cos of x sin alpha plus n। what is tan inverse, tan खत्म, tan inverse ये आएगा alpha n alpha। ये आपको MCQ भी आता है, ये क्वेश्चन आपको लगा ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये MCQ भी आता है। 3 स्टेप्स का है, लेस देन 1 मिनट लगता है इसको, हार्डली 1 मिनट लग सकता है आपको इसको इवैल्यूएट करने में। तो ये है आपका ये क्वेश्चन। नाउ आई विल गिव यू सम आउटलाइन ऑफ द लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम हमें करना है, एक्चुअली आपको सिलेबस में है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। आम तौर पे याद रखिएगा आप, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में पढ़ते हैं ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, या अगर आप बीटेक में पढ़ते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें मेन चीज़ आपको होता है सिलेबस में लेबनीज़ थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। आमतौर पे ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस में है स्टेट एंड प्रूव लेबनीज़ थ्योरम, ज़रूरी करना पड़ेगा आपको, प्रूफ सीखना पड़ेगा, प्रूफ ठीक तरह से। अगर आपको ओनली एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज़ थ्योरम है, फिर आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स करना पड़ेंगे लेबनीज़ थ्योरम में। पहले लेबनीज़ थ्योरम समझ जाए, लेकिन अभी मैं लेबनीज़ थ्योरम इस लेक्चर में शायद नहीं दिखाता हूँ। मैं लेबनीज़ थ्योरम का आउटलाइन, उसमें क्या क्या हमें यूज़ होगा, ये आप रिवाइज करेंगे, फिर आप जा सकते हैं लेबनीज़ थ्योरम पे। सो इट इज़ समथिंग अबाउट जो हमें लेबनीज़ थ्योरम करना है। आई एम नॉट गिविंग यू द statement of Leibniz theorem yet, not the proof, but I may say this is also a language। वहाँ क्या लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, कौन कौन चीज़ हमें यूज़ होते हैं वहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम में हमें डिफरेंट वी आर हैविंग डिफरेंट प्रूफ्स, बट यू हैव टू प्रेफर दैट प्रूफ विच इज़ very simple, that is the proof where you have done something previously। it is mathematical induction। mathematical induction बहुत से बच्चों ने किया होता है, ऑलमोस्ट आपके सिलेबस में है, लोअर क्लासेस में, आई मीन 11th क्लास से ही शायद है आपको ये मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आप में से किसी ने मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं किया है या मैथमेटिकल इंडक्शन भूल गए हैं, मैं आपको थोड़ा उस पर इम्प्रिंट डालूंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ठीक है। वही मैं कहता हूँ, लैंग्वेज वही रहेगी उसकी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ को थोड़ा मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आम तौर पे मैथमेटिकल इंडक्शन हम यूज़ कर सकते हैं अगर कोई रिज़ल्ट प्रूव करना पड़ेगा हमें जनरल में। क्या कोई रिज़ल्ट जनरल में सही है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल मैथमेटिक, यानी कि कभी हम इसी मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से कुछ रिज़ल्ट्स ये देखते हैं कि कुछ रिज़ल्ट सही नहीं है, उसका मैथमेटिकल इंडक्शन ही यूज़ करते हैं। तो क्या है, मैं इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, जस्ट यू डिड इन योर क्लास 11th। इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड है। स्टेप्स मेन 3 है इसमें इन्वॉल्व। नंबर फर्स्ट होता है बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में क्या करते हैं, आप गिवन स्टेटमेंट को, गिवन स्टेटमेंट इज टू बी वेरीफाइड फॉर n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। ये अगर n इक्वल टू 1 के लिए वो ओबियस है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्राइबल प्रूफ है, मतलब वो सही लग रहा है नज़र से ही, n इक्वल टू 1 के लिए ये सही है।
फिर हम देते हैं n इसको, n क्या है एक्चुअली, n इज सम नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n बिलोंग करता है, n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर हियर। तो आप प्रूव करते हैं पहले स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट, उसको आप देखते हैं क्या ये n इक्वल टू 1 पे सही है। अगर n इक्वल टू 1 पे लग रहा है कि ओबियसली सही है, तो n इक्वल टू 2 पे भी हम देखते हैं 2 पे सही है। फिर हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट कोई प्रूव करना है, कोई स्टेटमेंट प्रूव करना है। फिर हम नहीं देते हैं n3 n4 n5 n6, भाई इसमें तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कहीं रुक नहीं सकते हैं, फिर हमें सालों साल n को वैल्यूज़ देने हैं, तो फिर उस वक्त भी डिसाइड नहीं होगा रिज़ल्ट क्या है। लेकिन इसमें प्रिंसिपल कहता है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन, शायद ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपके बुक्स में दिया है। तो ये भी डिमोवेयर का शायद ये है, ये डिमोवेयर ने दिया है, आप इसका देख सकते हैं। डिमोवेयर और भी एक मैथमेटिशियन था जिसने इस पर काम किया है, ये मैं कभी बताऊँगा आपको हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में। तो ये बेसिक सेटअप हम पहले करते हैं, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 पे देखते हैं क्या ये सही है। फिर हम जाते हैं, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम द स्टेटमेंट फॉर एनी फाइनाइट नंबर, मतलब फाइनाइट नेचुरल नंबर, से n इक्वल टू k के लिए हम ये एज्यूम करते हैं, या n इक्वल टू m के लिए एज्यूम कर, यहाँ हमें प्रूव नहीं करना है, हम यहाँ मान लेते हैं कि सपोज एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी फाइनाइट नंबर से n इक्वल टू k। देन थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप इज, इसको हम कहते हैं इंडक्शन स्टेप। दिस इज नोन एज इंडक्शन स्टेप, दिस इज व्हाट यू डिड इन योर प्रीवियस क्लास, दिस इज नोन एज इंडक्शन स्टेप। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को, वी वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हम k प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट करते हैं, या ये n प्लस 1 के, अगर n प्लस 1 के लिए सही निकला, then we generalize the result is true for every natural number n belonging to capital N। आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ। सपोज आपको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से, सपोज यू वांट टू प्रूव सिंपल, मैं एग्जांपल यहाँ पे टू प्रूव 2 raised to power n is divisible by 2 for every n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितना सिंपल है ये, मतलब आप अमूमन कहेंगे कि हम n को देंगे 1 2 3 4, भाई कहाँ तक जाएंगे, हमें यहाँ पे यूज़ ज़रूरी करना पड़ेगा मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले हम देखते हैं बेसिक सेटअप में अगर हमने इस स्टेटमेंट को डिनोट किया, p ऑफ n को डिनोट किया बाई 2 raised to power n, हम n को देते हैं 1, चलो 2 भी देते हैं, हमको क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इज़ 2 raised power 1 विच इज़ 2, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर हम 2 पे भी देखते हैं p ऑफ 2, ये हम कहते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट साइज दैट, इसको इस तरह हम लैंग्वेज अपनी है, p ऑफ n इज़ अ स्टेटमेंट साइज दैट इट इज़ इक्वल टू 2 raised power n। कभी लिखते हैं p n इज इक्वल टू 2 raised power n, वो भी चलेगा, वो भी सही है। इट इज़ 2 raised to power 2 दैट इज़ 4, यहाँ भी यस इट इज़ डिविजिबल बाई 2, ये भी डिविजिबल। अब हमें नहीं जाना है 4 के लिए, फिर हम एकदम लेते हैं इसके बाद अजम्पशन सेटअप। हम लेते हैं क्या, अजम्पशन सेटअप में क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम द रिजल्ट ट्रू फॉर n इक्वल टू m, where m is finite पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। यानी कि आपने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारे पास जो p ऑफ m है जो हम लेते हैं 2 raised power m के बराबर इज़ डिविजिबल बाई 2। ये अजम्पशन इसमें प्रूव नहीं करना है, एज्यूम किया है, सपोज किया है, इट इज़ डिविजिबल बाई। जब ये डिविजिबल बाई 2 है, उसका मतलब क्या है, मीन्स p ऑफ m जो है इज इक्वल टू 2 raised power m, इसको हम लिखते हैं 2 into
सम इंटीजर, दैट इज 2 इंटू आर, क्योंकि कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 2 है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, अगर ये डिविजिबल बाय 2 है हम लिखते हैं 2 इंटू सम इंटीजर, बिकॉज व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2 इट हैज़ नेसेसरली 2 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है, क्या करना है, हम इंडक्शन सेटअप, इंडक्शन सेटअप में हमें वेरीफाई करना है ये, वी वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, क्योंकि m के लिए हमने एज्यूम किया, फिर हमें देखना है कि अगर हम m प्लस 1 लेंगे, एक सेटअप जाएंगे आगे, क्या उस पर भी ये सही है, फिर उसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना होता है, यहाँ पे एज्यूम करना है, वहाँ भी प्रूव करना होता है, समझ, यहाँ भी वेरीफाई करना है। व्हाट इज़ p ऑफ m प्लस 1? It is 2 raised to power m plus 1. I can write 2 raised to power m into 2. What is your 2 raised power m? It is 2 raised power m is 2r into 2. भाई ये तो है ही 4r. It is divisible by 2. So आप क्या कहेंगे? This means p of n which is equal to 2 raised power n is divisible by all, divisible by 2 for all n belonging to set of natural numbers. n यहाँ पे होता है always natural number. This is how we use mathematical, कोई भी रिजल्ट आपने किया होगा 11th क्लास में या उससे, proof of the binomial theorem, x plus a raised power n is nc0 x raised power n a raised power 0 plus nc1 a raised power n minus 1 x raised power extra. वहाँ भी हम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, बहुत से हमें रिजल्ट्स है जो हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे आप करेंगे प्रूव लेबनीज़ थ्योरम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन लेबनीज़ थ्योरम से आगे जाएंगे बहुत से रिजल्ट, खास कर और जो आपको नंबर थ्योरी आएगी आगे जब आप जाएंगे, आगे वाले सेमेस्टर्स में हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे, वहाँ हम देखेंगे बहुत से रिजल्ट जो हमें आते हैं, क्या इसका नाम है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में है या अलजेब्रा में है, या हमें होता है क्या इसका नाम है, इवन ग्रिप थ्योरी में वगैरह, बहुत से रिजल्ट ये है जहाँ हम करते हैं रिजल्ट्स प्रूव विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जहाँ n होता है नेचुरल नंबर। याद रखिए ये n पावर होना चाहिए, जो वहाँ पे n इन्वॉल्व होता है वो नेचुरल नंबर में, जब हमें n को वैल्यू देने हैं नेचुरल नंबर्स पे सही करना है, यहाँ पे n था नेचुरल नंबर ही, तो हमने प्रूव किया ये बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। इसलिए याद रखिएगा मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम पहले क्या करते हैं, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 भी, 3 4 वगैरह ज़रूरत नहीं है। देन assume it for n equal to any finite number k या m या whatever you write या p which are finite positive integers और natural numbers, then prove it, जो आपने यहाँ पे assume किया, अगर m की assume किया तो इंडक्शन में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा m प्लस 1 के लिए, अगर k आपने यहाँ पे assume किया n को, फिर प्रूव करना पड़ेगा k प्लस 1, अगर p assume किया फिर प्रूव करना पड़ेगा p प्लस 1, फिर फाइनल जब ये वेरीफाई हो जाएगा इसको हम कहते हैं हमने सही किया है, ये सारे सेटअप सही है, ऑल द 3 सेटअप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई रिजल्ट हमें ऐसा होता है कि जो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 पे सही निकलता है, अजम्पशन भी सही, लेकिन यहाँ गलत, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है, यहाँ सही नहीं है, यहाँ होता है फिर सही, तब भी हम नहीं कहेंगे वो सही है। समझ आए आपको? ये ऑल द 3 स्टेप्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये वहाँ पे लैंग्वेज एक होगी, वहाँ पे क्या इसका नाम है, लेबनीज़ थ्योरम में मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हम प्रूफ देंगे आपको इस स्टेज पे। आगे आप जाएंगे आप देखेंगे ये लेबनीज़ थ्योरम का कोई और भी प्रूफ होगा, अदर प्रूफ्स भी वहाँ पे है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वहाँ पे होगा लैंग्वेज, बाइनोमियल थ्योरम वहाँ पे यूज़ होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया है, अगर किया नहीं है तो रिवाइज़ कीजिए आप प्रीवियस क्लासेस से, यहाँ इतना टाइम नहीं है मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन टच करूँ, मैंने बाइनोमियल ये आपको ये टच किया, अदरवाइज इट इज़ योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तब भी मैं बताऊंगा बाइनोमियल थ्योरम में हमें एक वहाँ पे बाइनोमियल, ये जो है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, वह हमें एक गोल्डन इक्वेशन है जिसको हम कभी कहते हैं गोल्डन इक्वेशन, वो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम, चाहे आप बाइनोमियल थ्योरम प्रूव कीजिए या ये थ्योरम प्रूव कीजिए, बहुत से रिजल्ट्स है। आपका जो NCERT या नेशनल मैथमेटिक्स बुक है जहाँ पे आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वहाँ हमने
ये वहाँ रखा है उसका प्रूफ कि ये जो गोल्डन मैं लिखूँगा यहाँ पे गोल्डन इक्वेशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, वो मैं लिखूँगा। प्रूफ भी बहुत सिंपल है, वो आप याद रखेंगे, वो वहाँ पे यूज़ होगा। ये दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस लैंग्वेज में जो हमें लेबनीज़ थ्योरम में यूज़ आएगा। इसलिए आपको लेबनीज़ थ्योरम फॉर एनर्जी डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी डेरिवेटिव जो हम करेंगे इसी लेक्चर नंबर 7 में जाएगा वो। तो उसका जो लैंग्वेज है उसके लिए 6th लेक्चर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ हमारे पास है बाइनोमियल दिस कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट्स। आपको पता है अगर हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम, जो हम लिखते हैं NCR से भी, हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n में से हम बनाते हैं r के ग्रुप्स या कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन आता है कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन में भी ग्रुप्स होता है, लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर नेसेसरी होता है, यहाँ ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स लूँगा, 7 में से ABC में लेता हूँ 3, ABC या BC या CAB कॉम्बिनेशन में 1 एंड द सेम है, लेकिन परम्यूटेशन में ABC, BCA, CAB वो आएंगे 3। ये फ़र्क है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये आपने किया है योर प्रीवियस क्लास। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसका फार्मूला क्या हम लिखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, इट इज़ n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन भी आपने किया होगा। तो परम्यूटेशन का ऑब्जेक्टिव है, परम्यूटेशन जो है ये भी ग्रुपिंग है, डिफरेंस ये है, यहाँ पे विदाउट ये ऑर्डर है, यहाँ तो ऑर्डर ज़रूरी है। यहाँ पे आपको फार्मूला है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये चीज़ आपने किया है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो हमें यूज़ होता है, ये गोल्डन दिस इक्वेशन है, दिस इज़ अ गोल्डन इक्वेशन कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट्स में ये एक रिलेशन है जो आप याद रखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ n, या चलो हम लिखेंगे यहाँ पे m ऑब्जेक्ट्स या n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r माइनस 1 एट अ टाइम प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ m टेकिंग r एट अ टाइम is equal to combination of m plus 1 taking r at a time। ये वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन इक्वेशन हम कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन में किया है आपने, आपको होगा इसका एक्चुअली होगा वहाँ पे आपको प्रूफ इस रिज़ल्ट का, जो आपका प्रीवियस NCERT या नेशनल बुक ऑफ मैथमेटिक्स जो है, इवन JK बोर्ड के बुक्स जो हैं वहाँ पर भी ये है कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ m टेकिंग r माइनस 1 एट अ टाइम। यहाँ m सेम है, यहाँ r माइनस 1, यहाँ r है, जब ये हम निकालते ये इसके बराबर आता है। अगर आप करेंगे इसका प्रूफ भी कुछ स्टेप्स में हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड लेंगे, लेफ़्ट साइड कॉम्बिनेशन ऑफ m ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r माइनस 1 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ m टेकिंग r एट अ टाइम, क्या लिखेंगे इसको, इट इज़ m फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू m minus this minus r plus 1 factorial, then plus this is m factorial by r factorial into m minus r factorial। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप लिख सकते हैं, दिस इज़ m factorial by r minus 1 factorial m minus r plus 1 factorial plus m factorial। ये मैं लिख सकता हूँ r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल ओपन करके m माइनस r फैक्टोरियल। देखो यहाँ से मैं कॉमन ला सकता हूँ, क्या क्या यहाँ था कॉमन, m फैक्टोरियल यहाँ भी, m फैक्टोरियल यहाँ भी, r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, इनको मैं कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं इनको कॉमन लूँगा क्या आएगा, ये कॉमन निकाल के इसको मैं बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे m फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, इनसाइड क्या आएगा ये 1 बाय m माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, देन प्लस 1 बाय r इंटू m माइनस r फैक्टोरियल, ये आया। हालांकि अगर हम इसको भी ओपन करेंगे, आप देखो कितना ये कम होगा, m फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल
1 बाई, इसको ओपन कीजिए, पहला टर्म आएगा m माइनस आर प्लस 1, दूसरा क्या आएगा m माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, वो आपका बनेगा m माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 बाई आर इंटू एम माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे ये और ये कॉमन दोबारा हम निकालेंगे बाहर, ये क्या आएगा बाहर अब, दिस इज़ m फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू m माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज़ 1 बाई m माइनस आर प्लस 1 बाई आर। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ योर m फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल m माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ एलसीएम में ले सकता हूँ, क्या आएगा r इंटू एम माइनस आर प्लस 1, ये जाएगा यहाँ पे r प्लस m माइनस आर प्लस 1, ये और ये कैंसिल, आप देखो क्या आता है, इट इज़ नाउ m प्लस 1, दिस इज़ m प्लस 1 देन m फैक्टोरियल बाई दिस इज़ r माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज़ योर m माइनस आर प्लस 1 इंटू m माइनस आर फैक्टोरियल। आप जस्ट इस पे नज़र डालिए, इस चीज़ पे m प्लस 1 m फैक्टोरियल, अगर आपको कहीं भी होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, आप लिख सकते हैं इसको 3 फैक्टोरियल है, बिकॉज 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको कहीं भी है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए m प्लस 1 m फैक्टोरियल, दिस इज़ योर m प्लस 1 फैक्टोरियल, करिए यहाँ नज़र डालिए, दिस इज़ योर r फैक्टोरियल एंड दिस इज़ m माइनस आर प्लस 1, अगर इसको डिक्रीज करेंगे फिर m माइनस आर प्लस 1, दिस इज़ दिस, सो दिस इज़ योर m माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये चीज़ किस तरह हम लिखेंगे, आप देखो, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ m प्लस 1 टेकिंग r एट अ टाइम, लगाइए इसको फॉर्मूला, what is this, m plus 1 factorial, it is this, then this factorial, it is this, division by, then division m plus 1 minus r, m plus 1 minus r, है ना, ये हम इस तरह भी लिखेंगे, इस टर्म को, इसको हम यहाँ इस तरह भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, इसको मैं इस तरह भी लिखूँगा यहाँ पे, दिस इज़ m plus 1 factorial by r factorial m plus 1 minus r factorial, यही हुआ आपका combination of, this is combination of m plus 1 taking r at a time, this factorial by this factorial into this minus this, वो ये है। इसलिए हमने क्या प्रूव किया, हमने एक गोल्डन फार्मूला प्रूव किया है, वो आप याद रखेंगे, combination of k taking r minus 1 at a time plus combination of k taking r at a time is nothing, it is combination of k plus 1 taking r at a time. This is known as the golden formulae in combination कोफिशिएंट, ये हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब हम लेबनीज़ थ्योरम प्रूव करेंगे, क्योंकि जहाँ बीच में मैं ये लगाऊंगा ना, वहाँ पे आप ज़रूर पूछेंगे वहाँ पे ये कैसे आया, ये क्या चीज़ है, ये आपने किया है, लेकिन इस स्टेज में मैंने आपको इसका दोबारा प्रूफ दिया, देने की ज़रूरत नहीं थी, आपको खाली ये याद रखना था, कॉम्बिनेशन ऑफ के r माइनस 1 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ के टेकिंग r, कॉम्बिनेशन ऑफ के प्लस 1 r एट ए टाइम। यहाँ पे आता है r माइनस 1, यहाँ r, ये दो सेम, यानी कि अगर ये m आएगा, यह आएगा p माइनस 1, यह आएगा m, यह आएगा p, देन इट इज स्टिल कॉम्बिनेशन ऑफ p प्लस 1 टेकिंग दिस p प्लस 1 टेकिंग r एट अ टाइम। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नाउ दिस आपका जो प्रूफ ऑफ द लेबनीज़ थ्योरम है वो सिंपल हो जाएगा, वो आप समझ पाएंगे इमीडिएटली। इन लेक्चर नंबर 7 वी विल गिव द प्रूफ ऑफ द लेबनीज़ थ्योरम। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।